Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering the 23rd part of Barron's 800 Words with Easy to Remember Images series. And in this video, we'll be covering 20 more words. So बाकी के words आप channel के playlist में जाके cover कर सकते हैं. And kindly note कि ये जो Barron के 800 words हैं are very frequent words in any examination. So kindly इनको बहुत अच्छे से याद करिए. And we are using images so that आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो एंड एग्जाम टाइम में आपको ये वर्ड्स काफी अच्छे से याद आ पाए, क्योंकि कई बार हम टेक्स्ट भूल जाते हैं, बट इफ यू आर रिफरिंग इट थ्रू इमेज सो वो हमें काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं. So for that reason, we are using the most relevant images for the particular word. So with that, let's start the session. So 441st word that we have is jocose, which means fond of joking or jocular. So ये word खुद में बोल रहा है कि ये joke के related है. So it is very easy word to remember and you can also connect it with the picture. So Dr. Mashur Gulati आपको help करेंगे to remember this word. Moving towards the next word. Next word is juggernaut, which means huge force destroying everything in its path. So आप जगरनॉट को एज जगन्नाथ याद रख सकते हो. So जगन्नाथ नाम की मूवी भी है and also जगन्नाथ एक गॉड का नाम है. So God are always powerful and they are there to destroy any evil power. So you can remember it in both ways. So moving towards the next word. Next word is जनता, which is group of people united in a political intrigue. So आप इसको जनता से याद रख सकते हो. So ये particular रैली में जनता बैठी है to watch his political leader. So आप उस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो. And also आप जनता वर्ड भी मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज से ही सुनते हो. So you can easily connect जनता with people and जनता word with political parties. So it is very easy word to connect. Moving to the next word. Next word is juxtapose, which means placed side by side. So आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एक पोज है जिसमें सब साइड बाय साइड खड़े होते हैं. तो जक्स्ता का मीन ये है कि सब एक दूसरे के बगल में है. तो अगर जक्स्ता को आप एज साइड बाय साइड याद रखते हो, सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज कुडोस, विच इज फेम, ग्लोरी और ऑनर. सो आपने कई बार ट्विटर पे, मेल पे या पेड प्रमोशन पे ये वर्ड सुना होगा. सो इफ यू आर डूइंग एनीथिंग गुड, सो कुडोस टू यू. सो इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, सो ये वर्ड को आप कूदो वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, विच मीन्स टू जंप. एंड आप जंप कब करोगे? व्हेन यू आर हैप्पी इनफ. सो अगर आपने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है, सो यू विल बी जंपिंग ऑन योर फीट. सो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि ये वर्ड है कूदो. सो खुशी में कब कूद रहे हो आप? सो बिकॉज यू हैव गॉट फेम, ग्लोरी और ओनर. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड. Next word is labile, which means likely to change. So this picture of Deepika in Pathan is labile because she keeps on changing the side. So इससे आप याद रख सकते हो. Otherwise you can also relate it with the word ille from Chennai Express, which means no. और love means your mouth. So आपकी जुबान से जो भी निकल रहा है, that have no value, you can change, you are likely to change. So word play से भी आप इसको याद रख सकते हो. So you can consider the both way, whichever is suiting you, you can go ahead with that. Moving to the next word. Next word is laconic, which means using very few words. So मैंने पहले भी बोला है कि lack is a root word, जिसका मतलब talk के related होता है. So lack means talking. एंड इस ओनिक को आप एज आइकॉनिक कंसिडर कर सकते हो, सो दैट आप इस रेजिग्नेशन लेटर को याद रख सको. सो इट इज वेरी आइकॉनिक इमेज. सो कभी अगर रेजिग्नेशन करना हो तो ऐसे ही करना. सो अगर आप इसको एज ए आइकॉनिक इमेज कंसिडर कर रहे हो और ये रिलेटेड टू लैक कर रहे हो, सो लैक मीन्स टॉक एंड आइकॉनिक मीन्स दिस. So this has very few words. So with that you can connect with using few words. So moving to the next word. Next word is lambast, which means to trash verbally or physically or criticize harshly. So ये कड़ी निंदा से आप इनको याद रख सकते हो कि he criticizes very well. And इस बेस्ट से आप बस्टेड को कनेक्ट कर सकते हो. सो जब भी हम लोग गेम में बस्टेड होते हैं, सो वी आर फिजिकली ट्रैश्ड. सो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि वी आर बस्टेड, सो लम्बस्टेड. सो इन बोथ वे यू कैन रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज lascivious, विच मीन्स लस्टफुल. एंड मीम में आपने जब भी ये इमेज देखा है, सो उसके पहले जो होता है इसका मतलब वही है. सो आई कांट यूज द पिक्चर, स्टिल आप समझ सकते हो, सो आप समझ जाओ. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज lassitude, विच मीन्स lethargy और sluggishness.
सो ये वर्ड काफी इजी है, जिसमें आप लाश की बात कर रहे हो. लाश मीन्स डेड बॉडी. सो व्हेन यू आर एक्टिंग एज अ डेड बॉडी, दैट मीन्स यू आर लेथार्जी इनफ, यू डोंट वर्क एट ऑल. आप बस एक लाश की तरह पड़े रहते हो दिन भर. सो दैट इज लैसिट्यूड. आपका एटीट्यूड पूरा एक लाश की तरह है, आप लाश की तरह पड़े रहते हो दिन भर. सो दैट इज लैसिट्यूड. सो यू कैन इजिली कनेक्ट टू दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज लेटेंट, विच मीन्स स्टेट ऑफ डिसयूज. एंड इससे आप लेट को कंसिडर कर सकते हो. सो ऑलवेज वेन एवर यू आर लेट, सो यू आर डिस यूजिंग योर टाइम. सो जब भी आप टाइम को ठीक से यूज नहीं कर रहे, देन यू आर गेटिंग लेट. सो विद दैट यू कैन कनेक्ट स्टेट ऑफ डिसयूज मीन्स लेटेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज लाउड, विच मीन्स प्रेज. तो आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो कि आप कुछ भी चीज लाउड तब करोगे जब वो आपका प्रेज है. अगर वो आपकी बेइज्जती है तो आप उसको बहुत स्लोली, बहुत साइलेंटली करोगे. बट अगर आपने कुछ झंडे गाड़ दिए, सो यू विल स्पीक इट आउट अलाउड. सो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि यू विल लाउड इनफ व्हेन यू विल डू समथिंग प्रेज वर्दी. सो विद दैट यू कैन कनेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज लेथार्जी, विच मीन्स इनएक्टिव. एंड लेथार्जी वर्ड को हमने ऑलरेडी कवर किया, बट स्टिल आप इसमें लेट को देख सकते हो. सो इफ समवन बीइंग लेट, सो ही इज इनएक्टिव, ही डज नॉट टेक हिज टाइम सीरियसली. सो उस वजह से वो बार बार लेट हो रहा है. सो विद दैट यू कैन कनेक्ट इट वेरी वेल. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज levee, which means an embankment that prevents a river from overflowing. So अगर ये रिवर है, so kindly follow my mouse pointer. तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ये वाले एरिया का स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे बीच में से पानी बह रहा है, और ये जो दो किनारे हैं, ये किनारा और ये किनारा, इज स्टॉपिंग दैट रिवर फ्रॉम ओवरफ्लोइंग. तो इन दोनों किनारों को हम लेवी कहते हैं. एंड इसमें आप इस वी को कंसिडर कर सकते हो. ये दोनों किनारे इतने ऊपर रहते हैं फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट कि वो एक वी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. सो कुछ तो रिवर ऐसा है, एग्जैक्टली नॉट द सेम, बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि रिवर का स्ट्रक्चर वी फॉर्म में है. एंड विद दैट यू कैन रिमेंबर. और वी पे इस पे काफी फोकस है, बिकॉज एल के आगे एक ही ई है, बट वी को एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दी जा रही है विद डबल ई. सो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि वर्ड है जो वी डोमिनेट कर रहा है. सो आप वी को बना के रिवर से और ओवरफ्लोइंग से इसको कनेक्ट कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज लैविटी, विच मीन्स लाइटी मैनर और एटीट्यूड. सो इसको आप लेविस के जीन्स से कनेक्ट कर सकते हो. सो जो भी लोग अभी जीन्स पहन रहे हैं, सो दे आर इन लाइट मूड. और जो भी प्रोफेशनल मूड में है, और जो भी अभी सीरियस मूड में है, वो प्रोफेशनल अटायर पहन रहा है. सो जो भी लेवाइस की जीन्स पहन रहे हैं आर ऑल इन लाइट एटीट्यूड. ऑल्सो हम जीन्स पहनते हैं टू एंजॉय आवर मोमेंट, सो हम उस टाइम पे थोड़े लाइट होते हैं. सो विद दैट ऑल्सो यू कैन कनेक्ट. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज लिबरल, विच मीन्स टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड. सो यू कैन कनेक्ट दिस वर्ड विद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. एंड ऑल्सो अगर आपको पता है, सो इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, विच मीन्स लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. सो लिबरलाइजेशन में वी बिकेम ब्रॉड माइंडेड, वी बिकेम टॉलरेंट इनफ. सो काफी कंपनीज को हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया, ताकि वो अपने बिजनेस इंडिया में रन कर पाए. सो इट इज वेरी वाइडली यूज्ड वर्ड, सो आई डोंट फील यू हैव एनी डिफिकल्टी टू रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next word is libertine, which again means the same, one without moral restraint, one who is broad-minded. So you can connect it with liberal word. Moving to the next word. Next word is libido, which means sexual desire. And again, समझ रहे हो वाला meme you can relate. And आप इसको and lascivious को साथ में याद रख सकते हो to make it more easier and long-lasting. Moving to the next word. Next word is Lilliputian, which means extremely small. And if you know a flower which is lily, so it is very small flower, वो ज्यादा बड़े नहीं होते. So आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हो. Otherwise this word itself sounding as lil. Lil means little. Little को short में lil बोलते हैं. So जो little है वो small है. So with that also you can remember. Moving to the next word. Next word is limb, which means to draw or describe. So आपके हिंदी के पेपर में हमेशा लिखा होता था कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको. That means you have to describe the questions given below. So निम्न वर्ड को आप इस निम्न वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो. और ये निम्न वर्ड के बाद आपको जो डिस्क्राइब करना होता था या ड्रॉ करना होता था कोई डायग्राम वगैरह, सो उससे आप इसके मीनिंग को कनेक्ट करके इजीली याद रख सकते हो. सो मूविंग अहेड.
So with this, we have completed the 23rd part of Barron's 800 words with easy to remember images. So if you are enjoying and learning from these videos, so kindly like, share and subscribe. And also stay tuned to the channel for more such videos and keep learning.